Hello, good evening. Good evening to all of you. Hi, Barsha. Good evening. Hello. I welcome all of you, all my fans, followers who are watching in three different platforms. That is Facebook, Instagram, LinkedIn. I heartily welcome you to the 13th episode of this Nilim Sunal talk show. And today we have some amazing guest with us, and she is none other than Barsha. And I'll talk about little bit about Barsha. I'll not take that much of time. And who is Barsha? Barsha is like, see, she has recently become best-selling author, and she has more than 20 years of experience in working in various reputed multinational MNCs, other software companies. She has developed passion. She has developed passion to help others in various aspects, that is personality development as well as in communication. And we we are very excited to hear many secret things, tips from Barsa, who is going to share her experience, her journey. So I again welcome Barsa Sharma to this 13th episode. Hi Barsa. Hi, So how? Nilam. Thank you so much for giving such a wonderful introduction. It feels that I'm having Grammy Award today. So thank you. Thank you. So we are very excited, and guys, see, you may have lots of money, you may have great success, but one thing, if you don't have, you will you will never become fully happy. What is that one thing? What is that one thing? That is the relation, isn't it? The relationship matters, be it in house, be it in office, or anywhere. Relationship matters. And it is a very important topic in today's world, in 21st century, because we have seen lots of news in various media or other things, the breakups and the problems. Why? People have wealth and other things, success, but they're struggling in these things, very core thing. And see, many beautiful relations are broken, and I feel very pain in my heart seeing those things. Because of that pain I am having, I thought of inviting Versa, who is doing amazing work in this area. She is going to help you in this regard. So, Versa, before going further our discussion, please talk about yourselves, like what you do, what is your like hobbies, and how you help others. Yes, we are excited to hear from you. Thank you for passing on the mic again, Nilim. So I think you have given a very good introduction. I think better than I can give my introduction about myself. And thank you so much. I'm really glad. But yes, though you have passed on the mic to me, and I have to talk about myself. So from Delhi. I am from Delhi basically, and recently moved out from Delhi to Noida. And as you have correctly said, that I have been working with MNCs and so many other companies from last 20 years, and having got the exposure to work with several kind of teams and processes, training them and helping them with the operations. However, the passion that was within me to help others to grow and develop their personalities has always been inside me, and I could never recognize that passion in me. But it's just, I think, 4 or 5 years back when I realized that I have to serve the society in some or the other way. And because this is my passion, I decided to help people to overcome their fears about their low self image and low confidence. And parallelly, there was, I would not say the passion, but yes, I used to feel the pain that relationships have these days. So partners, they share a good bond, but still after getting married for few years, everybody see that kind of little, things, love.
and connection fading away. So to some extent I kind of knew that, what kind of fears, what kind of typicalities, typical behavior these two genders have, the female and the male, since my childhood. Because I was getting I was growing up in a joint family of more than 20 members. If you will read my book, you will come to know about my background. And I knew somewhere, I knew that, this is something, that this topic is very close to my heart, relationship management and everything. And I used to observe these things very carefully, and that's how I decided to write this book, Nilim. So thank you so much for giving me this platform to get connected with the larger audience, where I can talk my heart out and I can help people. I'm sure that people would come up with few questions, quick questions during the podcast also, and we'll make sure, we'll try to take everybody's question as far as it is possible. Thank you, thank you, thank you. And my dear friends who are watching here, and today I'm going to tell you something that Barsa has not only going to share tips and she will answer your questions. She has come up with some beautiful gifts for you, and those gifts will be shared as our podcast goes on. And see, please stay tuned. You'll be amazed to come to know about those. What are those gifts? Okay, and thank you again for coming this podcast show. Okay, so Bertha, let's go back into your childhood, and you said that like you have seen at a very young age, like some you have been observant about relationship, all those things at a very childhood, right? So what made you so observant about relationships at such a young age? Like, can you uh, give some light on this? Yeah. Sure, sure. So first of all, let me just share the look of my book, though I think it would be Yes, like yes, a yes. mirror image Yeah, that yeah. people would see. Let me just show a Unknown. little bit. Yeah. You can say, Unnoticed yeah. thoughts. Unknown. Yeah, now Yeah. you can see. So this is Unknown to Unknown short. to Sort 10 Strategies for the Best Married Life, and you can easily get a copy for you on Amazon.com. So yes, coming back to your question, Nilim. So Yeah, yes, yeah. as I mentioned that since my childhood, I was a very observant kind of a child. So I used to see ups and downs in the relationships in my family, immediate family, in our close relatives and close friends' families too. When I was in my teenage, I could understand that there are some typical behavior traits that all the genders have. These two genders have, male and female, and they don't realize it. एंड जब Mm. बहुत देर हो जाती है, जब छोटे छोटे डिस्प्यूट्स को आप डिफ्यूज नहीं कर पाते हो, एंड यू Mm. गेट इनटू मेजर क्वेरल्स, तो तब कोई फायदा नहीं होता कि आप you go back and you start working on those typical behavior traits. It's very important that you gauge them at early stage and work on them, and then probably get into a relationship. So for that, obviously I had to realize certain things about my behavior traits also, my typical behavior traits also, which are related to my gender. Because being a female, I knew these typicalities about females, but I had to do little survey, little research about these typical traits the male members have. And obviously, if they both know that having different perspectives, they can still be on the same page. It's not necessary that you have to have the same perspective to be on the same page. You can still have two different opinions, two different perspectives, and still can be on the same page. This is called the harmonious relationship. Even if you are in any kind of relationship, you're married, not married, you have a live-in partner, or maybe just got divorced or separated and now looking for another partner, you might face similar kind of a problems again in life, until Mm. you find out what are those typical behavior traits you have, and then start working on them before time, before it's too late. Okay. That's a like a good insight that we need to know our typical behavior traits, right? Right, That means right. like
दैट मीन्स लाइक हम लोग को माने अपना सेल्फ अवेयरनेस माने खुद को देखना पड़ेगा, इजंट राइट? सो लाइक या Yes, मेनी टाइम्स दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम क्या होता है दूसरों के ऊपर फोकस करते हैं, वी फोकस ऑन अदर्स मैक्सिमम टाइम, राइट? सो लाइक right, right. so like is there any way like how can we focus on ourselves, how can we look at ourselves, right, to know those typical traits? Hmm. Hmm. Right, right. So, Nilim, as we are getting messages that we should speak in Hindi also, so let me Yeah, yeah. explain this in Hindi. So, again, my book, Unknown to Sort, talks about this kind of behavior traits through storylines, through different scenarios, through real time, real life situations. So, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. जैसे Sure. वो गर्ल्स हम लोग फीमेल्स में गॉड ने हमें ये क्वालिटी दी ही नहीं है दैट यू नो वी if you are saying something and your body language and your hand gestures or maybe facial expressions are saying something else, गर्ल्स के पास वो पावर है कि अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट इवन सेइंग अ सिंगल वर्ड, वी कैन स्टिल अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स. हम समझ Oh, सकते हैं, यू नो. वी अब yes. बोलो सिक्स सेंस है और वी हैव दैट स्पेशल पावर. सो गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स एंड फीमेल्स ऑन द लाइव पॉडकास्ट, यू शुड फील हैप्पी अबाउट योरसेल्फ Right, कि ये right. पावर हमारे पास होती है. बट अनफॉर्चुनेटली मेल्स के पास ये पावर कम होती है, और आई वुड से कुछ मेल्स के पास बिल्कुल भी नहीं होती, because they Mm. need to listen to what they have to feel. It's as simple as that. तो अगर आप चाहते हो कि आपका मेल पार्टनर, आपका हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड और आपके पापा फॉर दैट मैटर वो समझे आपकी किसी बात को, आपको बोल के बताना पड़ेगा. बिकॉज दे डोंट हैव दैट स्पेशल पावर लाइक फीमेल्स कि वो अच्छा कुछ नहीं Oh, बोला तो वो समझ जाएंगे. ज्यादा जो डिस्प्यूट्स हैं वो स्टार्ट ही छोटी छोटी बातों पे होते हैं. दीज आर वेरी पेटी मैटर्स. इफ यू विल लुक एट देम, आपको लगेगा नो यार, दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग, हु कैन फाइट ओवर दीज मैटर्स. वी डोंट रियलाइज इट बिकॉज वो पाइल अप होते होते ना, दे बिकम mm. मेजर डिस्प्यूट्स. तो आगे से दिस इज द स्मॉल टिप फ्रॉम मी जो मैंने मेरी बुक से अभी डिस्क्लोज कर दिया आप लोगों को. Unknown to Sort, आप बुक का नाम देख लो, and you can order it right now from Amazon, Yeah. and you will learn so many other things and tips like this that I have just shared. तो आज के बाद प्लीज माय लेडीज, माय डियर लेडीज, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी फीलिंग्स को आपके हस्बैंड्स, आपके पार्टनर्स एंड व्हाटएवर वो लोग समझ जाएं, आप बोल दीजिए. Mm. आप चाहते हो जब आप गुस्सा होते हो आपको कैसे मनाया जाए, आपको स्पेस दी जाए या स्पेस देने के बाद दोबारा मनाया जाए. जस्ट टेल योर हस्बैंड्स कि क्या Mm. चाहिए, क्योंकि व्हेन वी आर इन द बैड मूड तब ये चीजों के डिस्कशन का टाइम नहीं होता. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पहले से एक एक्सपेक्टेशन सेट रखो, आप उनको बताओ. एंड ये प्लीज कंप्लेन मत करिए कि मैं तो समझ जाती हूँ. उस दिन Mm. आप अपसेट थे, आप ऑफिस से आए घर एंड यू वर अपसेट अबाउट समथिंग. सो मैंने तो नहीं पूछा आपको कि मुझे आप बताइए क्या हुआ. आई अंडरस्टूड. आई मेड अ नाइट डिश फॉर यू. आई गॉट अ गिफ्ट, अ नाइस ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर यू. मैंने आपको गिफ्ट दिया. मैं खुद समझ गई ना कि आप परेशान थे, यू वर अपसेट. तो आप क्यों नहीं समझते जब मैं परेशान होती हूँ? सो दिस काइंड ऑफ कंप्लेंट्स, यू नो. Yes, yes, yes. So That's poor true. guys, That's I know because I have made a little research that's on this true. topic. Yes. तो Yeah. उनमें वो पावर नहीं है या बहुत कम है. वो इवॉल्व हो रहे हैं टाइम के साथ. तो आप देखेंगे कि कुछ सिचुएशंस में वो आपकी बिना कहे बातें भी समझने की कोशिश करते हैं. Mm. बट इट्स अ पार्ट ऑफ देयर एवोल्यूशन. दिस इज Mm. नॉट समथिंग विच इज इन देम नेचुरली, जैसे हम लोगों के अंदर नेचुरली है. दैट्स ओके. धीरे धीरे सब हम सेम Like, प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे. अंटिल देन वी हैव टू हेल्प ईच अदर. सिमिलरली माय मेल लिसनर्स राइट नाउ, निलिम, yeah, उनको ये टिप yeah. दे, राइट, कि अगर कभी आपको लग रहा है आपकी पार्टनर, फीमेल पार्टनर, शी इज अपसेट अबाउट समथिंग, तो वेट मत करिए आपकी वो आपको बताएंगी. आप पीछे पड़ जाइए, पूछिए तो सही ना उनसे कि क्या हुआ है. बिकॉज ऑफ लो ऑन पेशेंस आप छोड़ देते हैं एक बार पूछने के बाद. अच्छा क्या हुआ, नहीं बताना, ओके बाद में बता देना, चलो मैं फोन चेक कर लेता हूँ थोड़ी देर. इट्स लाइक यू नो. सही बोला. That is it. ओके, That is लेट्स it. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निलिम. Okay,
ये इतना पावरफुल टिप है, इवन लाइक आई थिंक ये टिप से बहुत सारे रिलेशनशिप माने या दे आर गोइंग लाइक दे विल इम्प्रूव, पक्का इम्प्रूव होगा ही होगा। या मैन मैन थोड़ा लाइक रोबोटिक टाइप का है ना, माने सिंगल ओके ओके, एंड फीमेल फीमेल यू हैव दिस गॉड गिफ्टेड पावर, यूटिलाइज इट एंड गुड, दैट्स अ लवली लवली टिप। तो बुक का थैंक एक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस ऑसम टिप। एंड गाइस देखा मैंने बोला ना, वर्षा कुछ अमेजिंग थिंग्स लेके आ रहे, तो ये तो यस, फर्स्ट में ही फ्री धमाका फ्री कर दिया। फ्री फ्री। थैंक राइट। यू। सो वर्षा, जैसा कि ये हम लोग का डिस्कशन हुआ था, आपने भी बोला था कि ये जो है ना, मैंने आपका जो टर्निंग पॉइंट कौन सा था, लाइक व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट व्हेन यू रियलाइज दैट यू हैड टू टेस्ट स्ट्रेटजीज ऑन योरसेल्फ हम्म। बिफोर हेल्पिंग अदर्स, लाइक एक तो कुछ लाइक कुछ हुआ होगा, कुछ मैंने धमाका कहीं देखा होगा, या तो क्या पता आपका। आई वुड नॉट से कि कोई धमाका हुआ, मैंने उसका वेट नहीं किया धमाका का एक्चुअली, मुझे पता था कि इससे पहले धमाका हो जाए तो आई शुड रियलाइज दीज अबाउट दीज थिंग्स बिफोर टाइम। सो हम्म, जैसे मैंने बोला कि मैं आसपास बहुत ऑब्जर्व करती थी कि रिलेशनशिप्स में मेन रीजन क्या रहता है इन प्रॉब्लम्स का, क्यों ट्रिगर हम्म, होते हैं दोनों लोग, फिर फाइट होती है दोनों के बीच में। सो मेरी बुक में भी मैंने मेंशन किया है दैट आई हैड टू बिकम अ गिनी पिग फॉर ऑल ऑफ यू। हम्म, पहले मैंने वो खुद पे टेस्ट किया। फॉर ओके ओके, एग्जाम्पल, गर्ल्स का ये बहुत मुझ में भी था वो, बाय द वे आई एम नो ग्रेट इन दिस थिंग कि मैं कोई कोई प्रिंसेस या मैं कोई गॉडेस थी, इजिप्शियन गॉडेस की आई वाज फ्री ऑफ दीज टिपिकल बिहेवियर ट्रेट्स। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो व्हाट आई रियलाइज अबाउट माई सेल्फ कि अगर आई एम अपसेट अबाउट समथिंग, ठीक है, और मैं चाह रही हूँ, तब पापा थे ऑब्वियसली बिफोर माई मैरिज, इट वॉज माई पापा, सो एवरी गर्ल हैज अ बॉयफ्रेंड इन फॉर्म ऑफ their papa. So my dad was my partner, my live-in partner, you would say, everything like in a male form. So मैं जब गुस्सा होती थी तो मुझे होता था कि मुझे मनाओ, पापा पैम्पर करें, मुझे मनाएं, ठीक है, लेकिन जब वो पूछेंगे कि बेटा क्या हुआ, तो बताना भी नहीं है उनको। नहीं, कुछ नहीं हुआ पापा, नथिंग, कुछ नहीं हुआ, बट आई एम अपसेट अबाउट समथिंग, और उन्हीं से ही अपसेट हूँ किसी बात पर। वो पूछेंगे अगेन, पापा कुछ नहीं, बेटा क्या हुआ, अगेन। अब एक टाइम के बाद वो पूछना बंद हो जाएंगे कि सच में ही कुछ नहीं हुआ होगा, बट आई एम स्टिल अपसेट, आई एम स्टिल हम्म, सैड, और मेरा मुंह बना हुआ है पूरा दिन, मैं बात नहीं कर रही हूँ किसी से, राइट। सो वो दैट थिंग वाज नॉट गेटिंग मी एनीवेयर। मैं भी परेशान हूं, मैंने सबको भी परेशान कर दिया कि वर्षा को क्या हो गया, क्या हो गया, एवरीबडी इज आस्किंग मी, बट मुझे बताना भी नहीं है। आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि ये सब गर्ल्स ना, फीमेल्स, कहीं ना कहीं ये हम करते हैं। तभी मैंने बोला कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लीज उन्हें बताइए कि आप किस बात पे नाराज हो। अगर आप ये बोल रहे हो नो 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 नथिंग, आई एम नॉट अपसेट अबाउट एनीथिंग, तो फिर आप नॉर्मल हो जाइए, फिर मुंह बना के मत घूमिए आप। अगर मुंह बनाकर भी घूमना है, बताना भी नहीं है क्या हुआ, सो व्हाट वुड द अदर पर्सन डू इन दैट केस? हम्म, सही। That time, this was one of the typical behavior traits that I'm discussing about you. फिर उस मैं पूरी बुक ही आपको रीड आउट कर दूंगी, तो उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, not to sort, right? So Yes, yes. yeah, so that was the point that I changed in myself. I made sure that I would not bother my partner, my husband, with this typical behavior traits that I have. अगर मैं अपसेट हूं किसी बात पर, मैं उन्हें बताऊंगी क्लियरली दैट यस आई एम अपसेट अबाउट दिस थिंग, मुझे अभी बात नहीं करनी है, प्लीज आप 2 घंटे बाद मुझे मनाने फिर से आइए। एज सिंपल। तो तो यस, इतना जस्ट किडिंग, देखिए। जस्ट किडिंग, ऐसे नहीं होना है। मतलब आप पहले से ये बातों के बारे में डिस्कस करिए कि जब आप गुस्सा होते हैं आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या वो करें क्या ना करें, ताकि जब आप सिचुएशन में हो, क्योंकि आप कम बोलेंगे, मूड अच्छा नहीं होता, वी टॉक लेस, तो हस्बैंड को पता हो व्हाट आर द एक्शन आइटम्स,
अब नेक्स्ट एक्शन प्लान है क्या, क्या करना है? That's a beautiful sharing. बहुत ही अच्छा और and thank you आप इतना और माने being the vulnerable you are sharing your own things and the thing is like आपने ये जो है ना अपने आप पे apply किया implement किया then आप वो जो results जो share कर रहे हैं तो that's a good thing आप कोई theoretical नहीं बोल रहे हो आप practical proven strategy share कर रही हो and guys the people who are watching you can read this book. This is a bestseller book. Okay, and she has worked and this on this book to help you actually to help millions of people. And I am damn sure आपका book पूरा बहुत बहुत लोगों को help करेंगे. Yeah, it will save lots Thank of you. relationships. Yes, yes. I hope Thank you. so. Thank you. Thank you. या सो लाइक एक तो आपने बता दिया है तो दूसरा और माने और कौन सा एक या दो स्ट्रेटेजी सॉरी मिस्टेक्स बता दीजिए जो कपल्स जनरली माने करते हैं और उसी के वजह से उन लोग स्टक हो जाते हैं रिलेशनशिप में अनहैप्पी लाइक वो पैटर्न बन जाते हैं या राइट, आई थिंक कभी भी कम्युनिकेशन गैप मत आने दीजिए किसी भी रिलेशनशिप में, बी इट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, बी इट योर रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन। क्या होता है एक टाइम के बाद जब आप बहुत सारा टाइम स्पेंड कर लेते हो ना किसी के साथ, बहुत बातें हो जाती हैं क्योंकि आपको लगता है बहुत बात कर लिया, अब मैं बहुत जानता हूं इसके बारे में या मैं बहुत जानती हूँ अपने पार्टनर के बारे में, हम कम्युनिकेशन को कम कर देते हैं फॉर सम रीजन, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। विद टाइम आप इवॉल्व करते रहते हो। हमें लगता है ऐसा कि हम सेम हैं या हमारा पार्टनर सेम है, ऐसा बात करने को कुछ नहीं है, मुझे पता है वो कैसे बिहेव करेंगे, मुझे पता है वो कैसे बिहेव करेंगी इस सिचुएशन में। प्रिज्यूम मत करिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पार्टनर के साथ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो। आप उनसे बात करिए, उन्हें बताइए। आपकी हो सकता है कि टाइम के साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई हो, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स चेंज हो गई हो। जो 10 साल पहले आप फील करते थे वो अभी आप उस चीज के बारे में नहीं फील करते। रिलेशनशिप्स को लेके जो आपका पहले एक थॉट प्रोसेस था वो चेंज हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। सो पार्टनर्स में ना क्या होता है, हमें लगता है कि कम्युनिकेशन हम करते हैं टाइम पास करने के लिए या हमें मजा आ रहा है। आप किसी से बात करते हो, टाइम स्पेंड करते हो, क्यों करते हो? बिकॉज यू एंजॉय टॉकिंग टू दैट पर्सन, यू एंजॉय दैट पर्सन कंपनी, राइट? लेकिन जो रिलेशनशिप्स कोर रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें ये स्ट्रैटेजी मत लगाइए। आप कोई कॉफी ब्रेक पे नहीं गए कि आप वेट कर रहे हैं, अच्छा 2 साल पूरे करने हैं, ओ 10 ईयर्स पूरे करने हैं, चलो कर लेता हूं, उसके बाद देखा जाएगा। बोर हो गए तो हो गए, दैट्स ओके। डिस्प्यूट्स हो गए तो हो गए। नो नो, डोंट वेट फॉर दैट टाइम। आपको लग रहा है कि कहीं पर कुछ बोर्डम फील कर रहे हो आप, ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स विद योर पार्टनर, यस सो दैट दोनों मिलकर कुछ एक कंक्लूजन निकालें कि अच्छा इस बोर्डम को कैसे दूर करें। क्या वकेशनिंग करें, मे बी 2 और 3 मंथ्स, एज पर योर फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल स्टेटस। हर किसी का कुछ ये सब चीजें मैनेज करने में अलग तरीका होता है सबका, राइट? फॉर मी मे बी इट्स वंस इन 6 months, फॉर समबडी maybe it's once a month or twice a month, right? कितनी बार आप वकेशन कर सकते हो, और मे बी टेक योर पार्टनर आउट फॉर a lunch, dinner, maybe sometimes with your kids। और अगर किड्स को मैनेज करने के लिए कोई अवेलेबल है तो पार्टनर के साथ अकेले जाइए, बात करिए, एंड मेक श्योर कि यू आर इन constant touch, that personal touch with your partner। It's very important, don't lose that personal touch। दिस इज सच अ स्मॉल थिंग, बट ये इतनी इग्नोर होती है, हम इग्नोर करते हैं इस वाले टॉपिक को बिल्कुल। बात क्या करनी यार, आई नो एवरीथिंग अबाउट माई पार्टनर। अगर आज मैं आपको पूछूं निलिम कि आपकी वाइफ के बारे में कुछ भी एक मैं क्वेश्चन पूछूं कि अच्छा आप बता देना निलिम आपने आपकी वाइफ के बारे में, और आई वांट टू हैव अ क्विक डिस्कशन विद हर, सो किस टाइम पे मैं कर सकती हूँ? सो यू विल से हाँ दैट्स ओके, आप 4 o'clock कर लेना। आई नो शी विल से यस without asking her। If you are saying, I'm just giving hypothetical example, Nilim, don't quote me on that, it's just an example for या because I can see your face right now, so you are my guinea pig right now। okay, it's just be my guinea pig for some time। यस यस so ज्यादातर क्या होता है, we start answering and responding to our friends, family on our partner's behalf।
कहीं पर इनविटेशन आया, आपको आया, आपने डिस्कस नहीं किया अपने पार्टनर से, सीधा बोला हाँ हाँ वो तो आ ही जाएगी साथ में, और वाइस वर्सा, गर्ल्स के मायके से, मदर की साइड से कोई इनविटेशन आया, हाँ 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 वो तो आ ही जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट. How do you feel? How can you be confident about it? Maybe वो particular relative आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, वो नहीं जाना चाह रहे, लेकिन आपने नहीं पूछा. मे बी उनकी लाइक्स डिसलाइक्स चेंज हुई हो, उनको नहीं जाना अभी. मे बी दैट पर्सन, पार्टनर इज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड टू गो टू अ पार्टी, और आपने पूछे बिना यस बोल दिया, ओके बोल दिया. सो थिंग्स लाइक दैट, यू नो, आई जस्ट हैव गिवन यू अ वेरी वेरी स्मॉल एग्जांपल, बट Yes. these are contributory factors to big quarrels and disputes for Mhm. the couples these days. Wow, wow, this is this is very powerful tip. ये होता है मैक्सिमम, माने लोग माने अपने पे डिसीजन, माने डिसीजन लेते हैं, फिर एक माने थोड़ा सा पूछ लेते, एक कंसेंट लेते, लेट देम लाइक फील दे वैल्यूड, राइट? Right. लेट देम फील वैल्यूड. ओके, चलो डिसीजन शायद आपका ही होगा, कम से एक बार पूछ लेने से ओके दे विल थिंक दैट ओके आई एम आल्सो, लाइक दे विल फील सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और समथिंग लाइक दैट. गुड, Right. गुड. Absolutely. Yes. You use the right word. Belongingness is very important. So एक companionship में आप किसी को unbelonged feel नहीं करवा सकते, unwanted feel नहीं करवा सकते, be it female और male. मैं दोनों के perspective से बात कर रही हूँ. Exactly. It's not just with the females. Males के साथ भी ऐसा होता है कि आप 4 गर्ल्स बैठ गई साथ में, आपकी कजिन्स आ गई, आप बिल्कुल भूल गए उनको कि कहाँ है वो, कहाँ नहीं है. अरे अरे वो ध्यान रख लेते अपना, यार छोड़ो, आज मैं घर में लगी रहती हूँ पूरा दिन काम करने में, मेरे बस का नहीं है वहां बाहर आकर भी मैं पूछू पूछू पूछू, चिक चिक चिक. तो ये लाइफ सिनेरियोज मैंने खुद देखे हैं. सो बिल्कुल भी आप अनबिलोंग्ड फील मत करवा दो अपने पार्टनर को. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड फील दैट कंपेनियनशिप इवन इफ यू आर in any of the setup, anywhere, be it your relative's place, any party, at home, watching movie, or with the kids. That sense of belongingness is very important. Thank Thank you you. for contributing that word. Yeah. Thank you, Barsa, for giving another insight and for happy this and to be fulfill marriage life. And I'm sure that this is going to help the audiences who are watching us live here. So, Barsa, like, can you tell us like what is the most what is the most surprising lesson that you learned while researching and writing this book? Like, you got some, okay, this is the most important like lesson you learned actually, and everybody should know that lesson. Their life will be like changed, transformed in terms of relationship. Yeah. So I think after getting married, it's very important that there is a smooth transition from honeymoon period. एंड वो मुझे शादी से पहले, ये ऐसी चीज है जो मैं शायद जानती थी इस टॉपिक के बारे में, बट आई कुड नॉट कॉमेंट ऑन दैट, क्योंकि लोग मुझे बोलते तुम्हारा कौन सा शादी होगी जो यू नो व्हाट इज अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम हनीमून पीरियड. बट ट्रस्ट मी, दैट फेज comes in everybody's life after you get married, be it after 2 years, 3 years. इसका कोई definite timeline नहीं होता. जब भी आपको ये लगने लगे कि आपके थॉट्स में थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो रहा है, whenever you start feeling that there is little clash in the thought process with your partner, whenever you start feeling that talking is less and probably, like, you know, enacting on things is more, whenever you start feeling that you are spending more time with your friends and outside than your life partner, my dear friends, your transition has already started from honeymoon period to a normal life, to a non-honeymoon period. Okay, so it can happen after 6 months, 1 year, 2 years, 3 years. There is no definite timeline. Few people experience this transition after 10 years of getting married, right? But don't get disheartened. ऐसा कुछ नहीं होता कि once honeymoon period is over, then, you know, everything would be in a gray shade. No, it's nothing like that. It's just that honeymoon period comes in our life in different phases. Probably
लाइक जो मैंने बोला कि ट्रांजिशन होता है जब आप न्यूली वेड होते हो, एक फ्रेश मोड में होते हो, देन प्रोबेबली डेफिनेशन ऑफ हनीमून पीरियड इट इज डिफरेंट फॉर पीपल, राइट? देन पोस्ट हनीमून पीरियड जो सेकंड फेज, सेकंड इनिंग्स आप लेते हो, विच इज आफ्टर हैविंग किड्स, probably you are both are busy in your lives, in your career and things like that. So if you want that bond, that connection, that love, that affection should remain the same even if it's like second phase of your honeymoon. So there should be a smooth transition. वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब तो मेरी लाइफ खत्म हो गई, हनीमून पीरियड ओवर, अब तुम मेरे हस्बैंड मुझे लव नहीं करते, मेरी वाइफ मुझ पे ध्यान नहीं देती है, मेरे लिए खाना बनाती थी अब बनाती नहीं है, हम पहले बाहर जाते थे घूमने अब हम जाते नहीं, हम बच्चों में ही लगे हुए हैं. सो थिंग्स लाइक दैट. Look at the positive sides that you guys have matured with each other. It's such a beautiful feeling that you guys are growing old with each other. You are getting evolved with each other. You are seeing that growth, that graph of growth with each other. You are so lucky. So मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी because I don't want to spill all the beans कि फिर रीडर्स पढ़े ही नहीं मेरी बुक. तो ये बुक आप जरूर लो, And Not to Sort. Yeah, I think yeah, now it's clear. And because Now it's it's clear. mirror image, so I can spell it out, UNKNOT, Unnot to Sort, on Amazon. अभी ढूंढ लो so that आप भूलो नहीं, क्योंकि once we'll go away you'll forget about this book. You like it right put now? it, if someone wants to take a screenshot, they can can you show the book cover again? Yeah, I think, but it's ulta. No, we can read it. It is ये सीधा दिखाई दे रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है. Oh, wait, yeah, is it हाँ, fine? सीधा ये Unnot to Sort, ये अमेजोन में मिल जाएगा आपको, ठीक है? You can get it. Now and ना अभी थोड़ा ये इधर आइए, पहले ठीक था. नहीं ऐसे नोट कर लिया है. हाँ ये ठीक है. हाँ ठीक है, तो ऐसा भी या ठीक है. गुड ओके गुड. और लाइक ये तो अमेजोन में तो है ही. और गाइस, देयर इज अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम वर्षा एज वेल फॉर यू. लाइक आपको ऑथर्स का साइन कॉपी ऑफ ये बुक चाहिए तो यू कैन DM, आप DM कर सकते हो वर्षा को. इवन यू कैन DM टू मी एज वेल. You will get a signed copy of the book, okay? And you can, और एक है वो थोड़ा बाद में बताएंगे, ठीक है? और एक सरप्राइज है, ठीक है? तो और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं. अच्छा वर्षा, you have spent like अपने more than 20 years spend किया है ये अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज, रेपुटेड MNCs में. और आप ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन कोचिंग में भी मैंने हेल्प किया है लोगों को, क्योंकि ये आपका पैशन है. यू लव टू हेल्प अदर्स इन दिस एरिया आल्सो. सो लाइक इसका एक्सपीरियंस आपको जैसे लाइक हाउ हैज दिस एक्सपीरियंस शेप योर अप्रोच ऑन द रिलेशनशिप्स? लाइक इज देयर एनी like indirect effect on this? Yes, definitely. Yes, it helped me because being a personality development coach and communication trainer, I can read non-verbal language also. So जब मेरा ये बुक राइटिंग का जर्नी चल रहा था जिसमें मुझे वो एस्पेक्ट भी टच अपॉन करना था so that people can relate to it, I knew for that fact that there are few cues that we all give to each other. If I'm upset, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना कि मैं अपसेट हूं. बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि हमारा वो जेंडर का पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं होता, स्पेशली मेल मेंबर्स का, तो हम वो समझना नहीं चाहते क्योंकि हमारा सोच नहीं जाती. बट ऐसा नहीं है कि अगर आप पर्सनैलिटी ट्रेट्स या बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल क्यूज को पढ़ना चाहो तो आप नहीं पढ़ सकते. इट्स वेरी वेरी अच्छा. आप देखो जब चार्ली चैपलिन की मूवीज आती थी पहले, सो वो बिल्कुल नो डायलॉग्स, विदाउट डायलॉग्स होती थी, ओनली एक्शंस, फिर भी हम हंसते थे ना उस पर. Exactly. उसमें कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. वो फीमेल्स भी देखती थी वो वाली वीडियोस और मेल्स भी देखते थे. तो क्या मेल्स कम हंसते थे और फीमेल्स ज्यादा हंसती थी? No.
नहीं, राइट? दैट मीन्स कि पावर तो है, लेकिन रिलेशनशिप्स में कैसे यूटिलाइज करना है, इसका उनको नॉलेज या एनलाइटनमेंट नहीं है। सो यहां पर फीमेल पार्टनर को पिच इन करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि दे डोंट अंडरस्टैंड बॉडी लैंग्वेज, दे डोंट अंडरस्टैंड फेशियल एक्सप्रेशंस, दे डोंट अंडरस्टैंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दे डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। It's just that in relationships, they don't have that ability to apply that skill. और वहां पर फीमेल्स ज्यादा स्किल्ड होती हैं, इसीलिए उनको ज्यादा कोऑपरेट करने की जरूरत होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझाने के लिए। बाकी जगह पे और भी बहुत पॉइंट्स है जो मैंने टच किए हैं, जहां पर ऑब्वियसली मेल मेंबर्स को अंडरस्टैंड करना है, कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ एवोल्यूशन करना है, अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट्स करनी है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, ये चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि आई न्यू कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन रिजॉल्विंग सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रिलेशनशिप्स। Yeah, it is said something like around 57%, like it goes to non-verbal communication, isn't it? Yeah. Yes, sometimes if you're not vocal. Yeah. If you're vocal, then it's fine. Then half of your problems will go away. इसलिए आप देखेंगे कि जहां पर दोनों पार्टनर्स बहुत बात करते हैं ना, अगर उनका लड़ाइयां बहुत होती हैं, डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं, तो उनकी लड़ाई सुलझ भी बहुत जल्दी जाती है। बाहर के पड़ोसी या रिलेटिव्स नहीं आते हैं सुलझाने के लिए। प्रॉब्लम वहां आती है यार, जहां पर दोनों पार्टनर्स वोकल कम है, या एक वोकल कम है और दूसरा वोकल है, बहुत ज्यादा है। जहां पर भी यस, जहां पर भी वो इम्बैलेंस होगा, जहां पर भी वो कम्युनिकेशन मिसिंग होगा, जहां दोनों बहुत बोलते होंगे ना, आप देखेंगे कि उनकी फाइट्स होंगी लाउड फाइट्स होती हैं, बट वो कनेक्शन नहीं टूटता, कनेक्शन ब्रेक नहीं होता उनका, एंड विच इज अ ब्यूटीफुल थिंग इन एनी रिलेशनशिप। थैंक यू सो शेयरिंग, इतना बढ़िया बढ़िया आप चीजें सिखा रही है, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो वर्षा, ये दिस इज योर फर्स्ट बुक, एंड ये इतना ये अपने जैसे कि लोगों को हेल्प करने के लिए बुक लिखा है, तो व्हाट इज योर नेक्स्ट, लाइक आफ्टर ये इस बुक के बारे में आपका कुछ प्लानिंग है, और एनी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स और थिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन? Let me tell you that I am not author by birth, or by my family or legacy. No, it's just that this topic was very close to my heart, so I had to write a book. But yes, to answer your question, so many readers and so many other people, they have come up to me and they requested that मैम आप हिंदी में कब निकाल रहे हैं बुक, इसलिए ये पॉडकास्ट मैं इंग्लिश में कर रही हूँ, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, क्योंकि मुझे ये बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि मैम हमारा लार्ज ऑडियंस जो इंडिया का है वो हिंदी समझते हैं, और उनको भी तो ये प्रॉब्लम्स होती है ना, पारिवारिक समस्याएं जिन्हें आप बोलते हो तो आप इसका हिंदी वर्जन कब निकालोगे? सो माय डियर ऑडियंस, डेफिनेटली आई डोंट वांट टू गेट इट सिंपली ट्रांसलेटेड फ्रॉम एनी एडिटर, क्योंकि मैं इसका सोल नहीं मारना चाहती हूँ। सो मैं ही इसका हिंदी वर्जन लिखूंगी, एंड आई कैन नॉट कमिट कि कब तक, but whenever I get time again in my life, I will definitely release the Hindi version of my book also in my own words. Wow. So yeah. See, this is like this is how actually passionate people ऐसे ही काम करते हैं। they think about others, like how they can help. अभी आपने इंग्लिश में लिखा है, तो इंग्लिश हिंदी ऑडियंस भी चाहते, तो you want to help. Like I really love your passion. I really love your passion, and अभी हम लोग ऑलमोस्ट पॉडकास्ट के एंड में पहुंच चुके हैं। तो लास्ट गिफ्ट जो वर्षा ने आप लोगों के लिए रखा है, द लास्ट गिफ्ट मैं रिवील कर दूं क्या, या आप रिवील करेंगे? No, show, you are the host of the show, Nilim. Go ahead. What's stopping you? Beautiful audience, जैसे कि वर्षा, जैसे she has a great experience, more than 20 years of experience, and she has become the best-selling author in this book that Unknot to Short, and काफी सारा इसके पास एक्सपीरियंस है, प्रूवन स्टडीज है। सो because you watch this podcast from start to the end, and we also want to give some value, and because of this you're listening and watching this thing, the beautiful gift is that Versa, if you want to connect with Versa,
you can have a free one-to-one session with her. She'll help you in her best way. So if you want to connect, you can DM. Yay! I am doing it on behalf of our audience. So, live audience, yes, you can reach out to me through Instagram DM. You can just message me on Instagram, and I'll make sure that I'll help you with the free one-on-one consultation to resolve your issues, and hopefully that you will lead a better life with your partner. It's such a beautiful feeling. The partnership, companionship is such a beautiful feeling. Just understand the true meaning of it, and I'm sure that after that, होल हार्टेडली आप वो एफर्ट्स करना चाहोगे, सिर्फ इसीलिए नहीं कि वर्षा ने बोल दिया, निलिम ने आज ये पॉडकास्ट किया या मेरी बुक पढ़ ली तो आप ये कर रहे हो. आप दिल से वो एफर्ट्स अप्लाई करना चाहोगे अपने रिलेशनशिप्स में जब आप इसका ट्रू वैल्यू समझ जाओगे. कंपेनियनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए तो ब्रेकअप होने के बाद आप कोई और पार्टनर ढूंढते हो ना, अकेले नहीं रह पाते. कितना भी आप बोलो वुमेन एम्पावरमेंट और मेल पावर, वट एवर इट इज, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे you want to have somebody in your life who is listening to you, who is with you in your hardships, be it your kids or your life partner. कोई आपको चाहिए होता है, right? So companionship का true मतलब समझिए. एंड अगर कभी लगता है थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं सामने वाले को ट्रैक पे लाने के लिए, लाइन पे लाने के लिए, कर दो. दैट्स ओके. अभी 2 एफर्ट्स कर रहे हो ना, कल कौन से 100 करवा लेना. But to resolve abhi present situation, to resolve your present dispute, just make that special extra effort, and you will see so many positive changes. Wow. ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल थॉट. वेरी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर दो. उस दो स्टेप के लिए भले आपको शायद क्या हजारों स्टेप ऐसे ही अपने आप खुल जाएगा, रास्ता खुल जाएगा. थैंक यू. Right. यस, या. Thank you, Versa. Thank you so much. Thank you so much for coming here and adding lots of value to our beautiful audience. And I want to thank you, like the audiences in different platforms who are listening patiently to this amazing podcast. चलो, ये मुझे बात तो और करने के लिए इच्छा था, पर टाइम का कमी से, क्योंकि she is very busy. She is very busy, and because despite her busyness, because she watched this podcast, she is giving some of her time slot for you to help you. So if you want like to connect with her, you can DM to her and get a free one-on-one call. Okay. And thank you Versa for coming here. We'll meet once again in future, and we'll do some other podcast on some other topic, right? Thank you so much, Salim, for giving me such a wonderful platform to connect with my larger audience. And hopefully you will stay peaceful and happy in your life. And on this note, all the best, everybody, and see you soon. You take care. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye.